Hello guys, so this is my second video in the lipoprotein metabolism series. If you haven't watched the first video, please go and watch that video first and then please come on to this video because that would simplify understanding this topic much more. Okay, so now in this video I'll be talking about the chylomicron metabolism, and so let's get started. So in the previous video I have already covered few points. Let me just revise those points, then we'll start. Okay, बस दो तीन पॉइंट हैं hardly. So we know that chylomicron, so I'm writing that chylomicron, spelling mistake, sorry for the mistake. So we know that chylomicron, this is the largest lipoprotein. I'm writing this is the largest lipoprotein. Also we know that this is the lipoprotein which is having the highest lipid content. Therefore, because of highest lipid content, it is having least density, and also it is having the least electrophoretic mobility. Least electrophoretic mobility. और इसी चक्कर में मैंने when I was explaining this electrophoretic mobility, that I said that it is present in the hazy gamma region, gamma band या gamma region. We will be finding the chylomicron. और मैंने आपको और क्या बताया था? I had said that ApoB48 was the characteristic apoprotein found in chylomicron. I also said that what is the function of chylomicron, that it is going to carry the triacyl glycerols. और वो भी कौन से triacyl glycerols? The exogenous triacyl glycerols जो कि हम डाइट के थ्रू इनटेक कर रहे हैं, वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स को कैरी करके कहां पर ले जाना है इसने? लिवर को. दिस इज द फंक्शन ऑफ द काइलोमाइक्रोन, एंड दिस काइलोमाइक्रोन, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड. So this is organized in GIT. Organized in GIT. So these are the few points which will help in understanding the chylomicron metabolism much more. So I'm repeating, chylomicron largest lipoprotein होता है, least dense होता है, least electrophoretic mobility भी होती है इसकी, इसलिए गामा रीजन में प्रेजेंट होता है. कैरेक्टरिस्टिक एपोप्रोटीन इसका B48 होता है, और इसका फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट दी एक्सोजीनस ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स फ्रॉम दी periphery, from the gut particularly, to the liver, and it is organized in the GIT. If this much is clear, then we can move on to the metabolism now. So मैं start कर रही हूँ GIT से ही, जहाँ पर chylomicron organize होता है. So let us start with GIT. So यहाँ पर मैं gut tube बना रही हूँ. Sorry. So ये रही हमारी gut tube. एंड यहाँ पर हमने क्या ऑर्गेनाइज किया? काइलोमाइक्रोन बनाया. सो गट ट्यूब में काइलोमाइक्रोन बना, और काइलोमाइक्रोन का कैरेक्टरिस्टिक एपोप्रोटीन कौन सा है? ApoB48. सो आई एम राइटिंग ApoB48, और इसके पास और क्या प्रेजेंट होता है? ApoA भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब वी नो दैट जो काइलोमाइक्रोन है वो कहाँ से सीधा ब्लड से कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, रादर द लिम्फेटिक्स, द लैक्टियल्स, दे कैरी द लाइपोप्रोटीन, द लिपिड्स. वी नो दैट लिपिड्स, cholesterol, and also the fat soluble vitamins. Which are the fat soluble vitamins? Vitamin A, E, D, K, you know, and only vitamin B and vitamin C, these are the water soluble vitamins. Vitamin A, E, D, K, these are the fat soluble vitamins. So these are carried in the लैक्टियल्स लिम्फेटिक्स के थ्रू ये कैरी होंगे. सो वही है लैक्टियल्स में, ये रहा काइलोमाइक्रोन, और इसके पास क्या है? B48 और ApoA, right? And it is going to carry, please write it side by side. It is going to carry triacyl glycerol. Exogenous, I'm repeating again and again, it is going to carry the cholesterol, and it is going to carry the fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins, which are vitamin A, E, D, K. ठीक है, this stage of chylomicron, this is the first stage of chylomicron, and this is called nascent chylomicron. Nascent chylomicron, obviously इसके बाद वो blood में भी जाएगा chylomicron. So ये फर्स्ट स्टेज काइलोमाइक्रोन की याद रखने है. नेसेंट काइलोमाइक्रोन के पास कौन कौन से एपोप्रोटीन है? राइट इन द ब्रैकेट दैट इट इज हैविंग ApoB48
एंड एपोए। अब क्या होता है, जो HDL हमें पता है एक और लाइपोप्रोटीन है HDL, तो यहाँ मैं HDL ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज HDL. नाउ दिस HDL will give ApoC and ApoE to this nascent chylomicron and convert it into mature chylomicron. Remember, हम LDL metabolism में भी देखेंगे कि HDL is donating certain apoproteins to turn into mature. ठीक है, और ये हो कहाँ रहा है, what is the site of this maturation? Plasma is the site of maturation. तो लिख लो ये हो कहाँ रहा है, ये सब मेटाबॉलिज्म प्लाज्मा में हो रहा है. यहाँ लिम्फ था, ठीक है, लिम्फ फिर जाएगा थोरेसिक डक्ट के थ्रू, ड्रेन का करेगा वीनस उसमें ब्लड में. सो प्लाज्मा में कन्वर्जन हो रहा है, एपोसी एंड एपोई ये डोनेट हो रहे हैं, कहाँ से, HDL डोनेट कर रहा है, और किस में कन्वर्ट कर रहा है, नेसेंट को मेच्योर. सो सेकेंड स्टेज इज द मेच्योर काइलोमाइक्रोन, mature chylomicron, and write down in bracket that mature chylomicron now is having ApoB48 इसका characteristic, ApoA पहले से ही था, and that donated by the HDL is ApoC and ApoE. So अब इसके पास ApoC भी है and ApoE भी है. This is nothing but the mature chylomicron. अब mature chylomicron अभी भी blood में रहेगा. अब ये पहुंच गया कैपिलरीज में, कहां पर, कैपिलरीज में, उन कैपिलरीज में पहुंच गया जहां पर अब इसे अपने एक्सोजिनस जो है वो इसे डोनेट करना है. सो आई एम ड्रॉइंग दिस बिग कैपिलरी, रेड कलर से ड्रॉ करते हैं, बड़ी सी बना रही हूं, कैपिलरी एंडोथेलियम, एंड दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स. ओके, प्लीज माइंड माई ड्रॉइंग, बट ये ऐसा ही है. एंड एक अब इम्पॉर्टेंट चीज, अब आती है बात लाइपोप्रोटीन लाइपेज की. सो आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज प्रेजेंट ऑन द कैपिलरी एंडोथेलियम. मतलब ये एंडोथेलियल सेल्स की जो कैपिलरी एंडोथेलियम की वॉल है उस पर प्रेजेंट होगा, और किसके थ्रू प्रेजेंट होगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटियोग्लाइकन चेन से प्रेजेंट होगा, और किसकी, हेपरिन सल्फेट से. तो अभी मैं रिपीट कर रही हूँ चीज, ये हमारी एंडोथेलियल सेल्स है, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है, दिस एंजाइम इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज. राइट इट डाउन, इट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज प्रेजेंट ऑन द कैपिलरी एंडोथेलियल वॉल, और किसके थ्रू, नेगेटिवली चार्ज प्रोटियोग्लाइकन्स. और कौन सा प्रोटियोग्लाइकन, हेपरिन सल्फेट. राइट डाउन, नेगेटिवली चार्ज हेपरिन सल्फेट, सल्फेट के थ्रू ये वॉल से अटैच्ड है. ऐसे ही लाइपोप्रोटीन लाइपेज यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा. अब क्या हुआ, हमारा जो मेच्योर काइलोमाइक्रोन था वो यहाँ तक पहुंच चुका है. सो अब हमारा लाइफ यहाँ पर पहुंच चुका है. लेट मी मेक इट क्लियर दिस टाइम. ये हमारा काइलोमाइक्रोन है, और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट था इस काइलोमाइक्रोन के. सो वी नो इसके सेंटर में प्रेजेंट था ट्राइसाइल ग्लिसरॉल. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल. अब जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज के एक्शन से किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में. ठीक है, अब फैटी एसिड वुड बी टेकन अप बाय सर्टेन टिश्यूज. इसका ये मेच्योर काइलोमाइक्रोन था, और इसके ऊपर क्या था, ApoB48, ApoA, ApoC, ApoE सब प्रेजेंट है इसके ऊपर. ठीक है, नाउ नोट 80% ऑफ triacyl glycerols which were carried by the chylomicrons, these are given to 3 sites. सिर्फ 3 sites पे 80% of triacyl glycerols carried is given. किसको उसको देगा, हार्ट, skeletal muscle and adipose tissue, skeletal muscle and adipose tissue. इन 3 साइट्स पे 80% अपना दे देगा. वाई, बिकॉज वी नो हार्ट फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म से एनर्जी गेन करता है, एडिपोज टिश्यू में तो ये स्टोर होंगे, और क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल भी सर्टेन रेंज में
फैटी एसिड्स यूज करती है, तो ये यहाँ पर दे देगा. सो दिस स्टेज होगी स्टेज 3 जहां पर एक्शन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज हो रहा है. ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये लाइपोप्रोटीन, अब ये काइलोमाइक्रॉन जो है कई जगहों और पे देके आएगा और फाइनली क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, फाइनली क्या होगा, ये हो गया हमारा काइलोमाइक्रॉन. अब इस काइलोमाइक्रॉन के पास सब है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है वो मैं बताऊंगी. थोड़ा बचा हुआ ये भी है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी है. और क्या है, लेकिन जो एपोप्रोटीन्स हैं, अब क्या बचा, सिर्फ एपोप्रोटीन ई एंड B48, तो हर बार ही होगा. दिस फोर्थ, ये लिख लो फोर्थ, दिस इज नथिंग बट द रेमिनेंट काइलोमाइक्रॉन. सो दिस इज द काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट. क्वेश्चन क्या आएगा, अगेन राइट डाउन इन ब्रैकेट which all apoproteins are present in chylomicron remnant, ApoE and ApoB48. क्वेश्चन क्या आएगा, which apoproteins these are absent in chylomicron remnant. So ApoA is not present, also ApoC is not present, तो ये सारे नहीं present है. Now we know, I have already talked in previous कि apoproteins के function में कि some apoproteins these are acting as ligand of receptors, and I specifically told that ApoE is going to act as ligand for the chylomicron receptor जो है, जो LDL receptor इन सबका ligand act करेगा, and this chylomicron remnant would be taken up by the liver. ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है, दिस इज दी काइलोमाइक्रॉन मैकेनिज्म. ये बहुत हॉच पॉच हो गया इस साइकिल में, आई एम गोइंग टू समराइज, इसलिए जिसे समझ नहीं आया लास्टली वो फिर से समझ ले, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड बाहर के लिए तो आता है. एंड आफ्टर आई कवर्ड द काइलोमाइक्रॉन्स मेटाबॉलिज्म, अगली वीडियो में VLDL मेटाबॉलिज्म, उसकी अगली में HDL, उसके बाद वील ऑल्सो टॉक अबाउट द लाइपोप्रोटीन डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व्ड, ओके, with lipoprotein metabolism. So अब मैं समराइज कर रही हूँ फिर से, प्लीज गाइस नोट, जैसे जो भी समझ नहीं आया ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन. मैं कह रही हूँ वी आर डिस्कसिंग द काइलोमाइक्रॉन मेटाबॉलिज्म. काइलोमाइक्रॉन क्या है, लार्जेस्ट लाइपोप्रोटीन है विद लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. इसका कैरेक्टरिस्टिक जो एपोप्रोटीन है वो B48 है. इसका मतलब क्या है, B48 सिर्फ काइलोमाइक्रॉन्स में होगा. अगेन नोट, B48 सिर्फ काइलोमाइक्रॉन्स में होगा. ठीक है, अब शुरू करते हैं गट से. सो दिस इज व्हाट, दिस इज गट और GIT. हम खाना खा रहे हैं, इट इज हैविंग ट्राइसाइक्लिसराइड्स व्हिच आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड, आवर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ. तो ये एक्सोजेनस ट्राइसाइक्लिसराइड्स, ये मिसल फॉर्मेशन होगी, उसके बाद इंटेस्टाइन में, उसके बाद काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्मेशन होगी, एंड दीज वुड बी टेकन अप बाय द लैक्टील्स. तो ये मैंने क्या बनाया, लैक्टील्स. सो राइट डाउन, so I'm writing it here that this is gut and this is lacteals. और लैक्टील से फिर कहाँ जाएगा, लैक्टील से हमें पता है उसके बाद जाएगा ब्लड के अंदर. तो ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ गया, प्लाज्मा में आ गया. प्लाज्मा पहले क्या हुआ, नेसेंट काइलोमाइक्रॉन हुआ. फिर से शुरू कर रही हूँ, गट में बना क्या क्या एपोप्रोटीन है, ApoB48 है, ApoA है. दिस स्टेज इज कॉल्ड नेसेंट काइलोमाइक्रॉन स्टेज. ApoB48 ApoA है. क्या क्या कैरी कर रहा है, ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कैरी कर रहा है. प्लाज्मा में क्या हुआ, इसे HDL मिला और HDL ने इसे अपना ApoC एंड ApoE डोनेट किया, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, मेच्योर काइलोमाइक्रॉन. सो मेच्योर काइलोमाइक्रॉन में ApoB48 है, ApoA है, ApoC है, ApoE है. अब ये तो ब्लड में चल ही रहा है, अब ये पहुंच गया उस साइड पे जहां इसे अपनी ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स देने हैं. वहां पर क्या हुआ, दिस इज द कैपिलरी एंडोथेलियम. सो लिख लो, these are the capillaries. ये क्या है, these are capillaries. ये साइड कौन सी है, कैपिलरी में आ गया. कैपिलरी एंडोथेलियम की वॉल पे क्या प्रेजेंट है, this enzyme which is lipoprotein lipase is present. This is present, this is lipoprotein lipase. किसके थ्रू ये बाउंड है वॉल पे, हेपरिन सल्फेट, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटियोग्लाइकन हेपरिन सल्फेट. अब क्या हुआ, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कौन करेगा, आई मिस द पॉइंट प्रीवियसली, प्लीज डू नोट डाउन. लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कौन करेगा, सो ApoC1 एंड ApoC2. ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ApoC1 एंड ApoC2 यहाँ पर प्रेजेंट है ना. ApoC1 ApoC2 दे गोइंग टू एक्टिवेट द लाइपोप्रोटीन लाइपेज, और लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा, ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में.
फैटी एसिड कहाँ जा रहे हैं, 80% ऑफ द ट्राइसाइक्लिसरॉल जो कि फैटी एसिड दे रहे हैं जस्ट 3 साइड्स पे दे रहे हैं, हार्ट में, स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में। अब क्या हुआ, इन सब के बाद ये क्या बनेगा, फोर्थ स्टेज इज द काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट। तो ये थर्ड स्टेज थी, अब आ गया काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट में कौन से एपोप्रोटीन्स नहीं है, एपो सी भी नहीं है, एपो ए भी नहीं है, कौन कौन से, एपो ई है और एपो बी 48 तो हर बार ही होगा। एपो ई जो है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज ए लाइगेंड फॉर द रिसेप्टर्स जो कि लिवर में सिचुएटेड है, एंड यूजिंग दोज रिसेप्टर्स जो लिवर है दैट विल टेक अप द काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स। ओके, दिस इज द काइलोमाइक्रॉन मेटाबॉलिज्म इन होल। आई होप आपको ये सब समझ आया। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन सो, और थोड़ा सा अननीट सा हो गया ये, दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू राइट इट प्रीवियसली एंड देन एक्सप्लेन, बट इस केस में वो समझ नहीं आता अगर मैं पहले से लिख के रखती तो। So I have tried my best, guys, and please do like the video if you have understood and appreciate my efforts, and share and subscribe to the channel also. And next video में अब हम बात करेंगे VLDL metabolism जिसके अंदर ideal and LDL metabolism, LDL cycle ये सब cover होगा, which is also called as bad cholesterol. So thank you guys.